بھارت کے خلاف جنگ میں غیبی مدد آئی، ایران اسرائیل جنگ بندی کے پیچھے بھی بڑھتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ایران اسرائیل کے درمیان سیز فائر میں وزیر اعظم کا اہم کردار ہے، سیز فائر پر پاکستان کو فخر کرنا چاہیے۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ مذہبی ہم آہنگی کا فروغ انتہائی ضروری ہے، قیام امن حکومت کی ترجیح ہے۔ بھارت کی طرف سے فائر کیے گئے میزائل ہدف تک نہیں پہنچے، جوابی کارروائی میں بھارتی شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ فیلڈ مارشل کو جنگ میں کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی، بھارت نے 4 گنا زیادہ نقصان برداشت کیا۔ کے پی کے جن علاقوں میں دہشت گردی زیادہ ہے وہاں علماء سے بات چیت کرنا ضروری ہے، مقامی لوگوں کی مدد کے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ علماء کرام دہشت گردی کے خاتمے میں اپنا کردار زیادہ سے زیادہ ادا کریں، سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف نمبرد آزما ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ علماء کرام نے پورے پاکستان میں اپنا فرض بہترین انداز میں نبھایا، ہمیں کسی نفرت، فرقہ واریت یا دشمن کے ایجنڈے کا شکار نہیں ہونا، ہم سب متحد رہنا چاہتے ہیں۔ حکومت اور افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت جیسے جھوٹے اور مکار ملک نے ہم پر الزام لگایا اور جارحیت کو مسلط کیا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں ہمارے دوست ملک ایران نے اسرائیل کو بھرپور جواب دیا۔ اسرائیل ایران جنگ میں پاکستان کا کردار بھی بہت روشن ہے۔ محرم الحرام میں سب مراحل امن اور عافیت کے ساتھ چل رہے ہیں، اپنے مسلک کو چھوڑو مت اور کسی کے مسلک کو چھیڑو مت۔ محرم الحرام سے متعلق خصوصی اقدامات کیے ہیں، 8 سے 10 محرم کے جلوس کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس کہا کہ 14,546 پولیس اہلکار مجالس کی سیکیورٹی پر تعینات ہیں، جلوس کے لیے 35,000 پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ محرم الحرام کا مہینہ پرامن طریقے سے گزاریں گے، 49,662 پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی محرم الحرام میں مرکزی مساجد، امام بارگاہوں اور دیگر اہم مقامات کی کڑی نگرانی کی ہدایت۔ کہا محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے حوالے سے علماء کرام اور اکابرین کو بھی آن بورڈ لیا جائے، تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مستقل روابط کو یقینی بنایا جائے، جلوسوں اور مجالس کی CCTV کیمروں سے نگرانی کی جائے۔ شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو سلام عقیدت پیش۔ ملک بھر میں مجالس، شہر سے جلوس برآمد۔ جنگ اور بھاول نگر میں 7ویں محرم الحرام کے جلوس، لاہور میں 424 مجالس اور 99 عزاداری جلوس برآمد، سبیل قائم، لنگر حسینی کا اہتمام۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر آذربائیجان پہنچ گئے۔ ترجمان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف دورے کے دوران اقتصادی تعاون تنظیم کے 70ویں اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ سمٹ میں علاقائی اور عالمی چیلنجز پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ وزیر اعظم ECO ویژن 2025 کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کریں گے۔ جنوبی افریقی فضائیہ کے سربراہ کی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں 2 طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں افواج کے درمیان رابطوں کی سطح اور دائرہ کار کو مزید وسعت دینے کے لیے بھی گفتگو۔ وسیع تر علاقائی صورتحال اور تازہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ جنرل ساحر شمشاد نے علاقائی سیکیورٹی کے منظرنامے پر پاکستان کے نقطہ نظر پر روشنی ڈالی، علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو بھی اجاگر کیا۔ سربراہ جنوبی افریقی فضائیہ نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے نام اظہار تشکر کا خط۔
स्पीकर कौमी असम्बली के पार्लिमानी किरदार की तारीफ, कहा भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी यकजहती कायम करने के लिए स्पीकर का किरदार काबिल सताइश है। पार्लिमानी क़यादत की जानिब से कौमी इत्तेहाद के मुजाहरे पर पाक फ़ज़ाइया शुक्रगुजार है। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज हर चैलेंज से निमटने की सलाहियत रखती है। पाक फ़ज़ाइया मुल्क के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। डिजिटल और कैशलेस मईशत की जानिब पेशकदमी, वज़ीर आज़म के तमाम अहदाफ दोगुना करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के हवाले से हफ्तावार इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगियों को आसान और तेज़ तर बनाने के लिए डिजिटल निज़ाम को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों को मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक तमाम मुकदमात ममनुआ जराइम और ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 497 के ज़ुमरे में आते हैं। केसेस में मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। मेरी हुकूमत गिराकर दिखाओ, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। कहा कि KP में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देख लें। हकीकी आज़ादी के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रहेगी। आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हमारे इत्तेहाद का पैगाम है। तहरीक इंसाफ में दरार पैदा करना मुखालिफिन की भूल है। आईनी तरीके से हुकूमत को नहीं गिराया जा सकता। KP पुलिस दहशत गर्दों का डट कर मुकाबला कर रही है। कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे KP किसी बहरान में चला जाए। अदम एतमाद से मुतालिक कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। नून लीग के रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी चीज़ है। बानी PTI खुद इसका शिकार बने। गवर्नर की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। एहतजाज PTI समेत हर सियासी जमात का आइनी और जमहूरी हक है। एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने पर हुकूमत कार्रवाई करेगी। सानिया स्वाद के मामले पर गफलत बरतने वालों का तयन जल्द किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि सानिया स्वाद की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि तहकीकात चेयरमैन सूबाई इंस्पेक्शन टीम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के हुक्म पर चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम पेश। कहा कि स्वाद का दौरा किया है, तहकीकात जारी है। मुख्तलिफ महकमों को कोताही सामने आने पर बरहमी का इजहार किया है। पाकिस्तान का पोलियो फ्री बनाने और हर बच्चे को मूजी मर्ज से बचाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो की टास्क फोर्स का इजलास। तमाम तर मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत अपने बैनुल अक़वामी, सूबाई और मकामी तमाम टीम की मदद से पाकिस्तान से इंसदाद पोलियो के हदफ को जल्द हासिल कर लेगी। पोलियो वर्कर्स की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमतों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को पोलियो के खात्मे के लिए यकजान होकर मज़ीद तेज़ी से काम करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी के इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने आमद। ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात। गवर्नर सिंध का इसराइली जारियत में शहीद अफराद को खराज अक़ीदत। ईरानी सफारत खाने की ताज़ियाती किताब में गवर्नर सिंध के तहरीरी तासुरात। ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली जारियत की मज़म्मत की। आयतुल्लाह ख़ामनई की सेहत व सलामती के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमत पाकिस्तान से मुश्किल वक्त में भरपूर हिमायत पर इजहार तशक्कुर। प्लास्टिक बैग्स थोड़ी सी आसानी लाते हैं मगर सदियों माहौल में तबाही फैलाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का प्लास्टिक बैग फ्री डे के मौके पर पैगाम। कहा इंसान अपनी ज़मीन, दरिया, फसलों, सेहत को प्लास्टिक की आलूदगी से नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक बैग निकासी आब के निज़ाम बंद और आबी हयात को ख़त्म करने का सबब बन सकता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर मोहल्लिक अमराज की वजह बन सकता है।
जमात इस्लामी ने तनकीद और मुजाहरों के सिवा कभी कोई काम नहीं किया। जमात इस्लामी रोजाना इल्ज़ाम तराशी करती है। शर्जील मेमन की जमात इस्लामी पर तनकीद, कहा कि जमात इस्लामी जाकर जहाद करें, यहाँ बैठकर फितना क्यों फैला रही है। MQM को अवाम का इतना ही दर्द है तो बल्दियाती इलेक्शन लड़ते। हम तो अब भी ये कहते हैं कि बैठकर बात करें, लड़ाई किसी से नहीं। हमने पूरे शहर में रिक्शों पर पाबंदी नहीं लगाई। 11 बड़ी शाहराओं पर चिंची रिक्शे पर पाबंदी लगाई थी। मैं ये समझता हूँ कि रिक्शा एसोसिएशन ने जो दरख्वास्त दायर की वो गलत है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इंतज़ामी मामलात सिंध हुकूमत के अख्तियार है। हमने आर्टिकल 9, 10, 11 और 25 की खिलाफ वर्जी नहीं की। सिंध के वजीर जेल खानाजात हाजी अली हसन जरदारी का मलीर जेल का अचानक दौरा, जेल किचन का मुआयना, खाने के मयार पर इत्मीनान का इजहार, जेल अस्पताल, मेडिकल कैंप, अद्वियात, सफाई और तिबी सहूलियात का तफसीली जायजा, कैदियों को तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराई की DG ऑपरेशंस कराची सैयद M अवैस ज़ैदी समेत पैमरा के हुकाम से मुलाकात, केबल इंडस्ट्री की ज़बोहाली पर तशवीश का इजहार और मुश्किलात दूर करने की दरख्वास्त। पैमरा हुकाम ने केबल ऑपरेटर्स के मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराई ने कहा कि केबल ऑपरेटर्स का मीडिया इंडस्ट्री के फ़रोग़ में कलीदी किरदार रहा है। अमेरिका ने ईरान का इंटरनेशनल एजेंसी से ताउन खत्म करना अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस ने कहा कि ईरान को यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। ईरान अमरीकी हमले से पहले यूरेनियम अफजूदगी कर रहा था। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। गाजा में हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार जानना और मग़वी रिहा करना होंगे। अमरीकी सदर की जंग बंदी की पेश करदा तजवीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। हमास की डोनाल्ड ट्रंप की जंग बंदिश की पेशकश की तस्दीक। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक हमास ने ये वाज़ेह किया कि किसी भी मुआहदे की बुनियादी शराइत इस्राएली फ़ौज का गजा से मुकम्मल इनखला होगी। ईरान ने आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी की थी। अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया ईरान ने खलीज फारिस में बहरी जहाज़ों पर बारूदी सुरंगें लोड की थी। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि आया इन माइंस को बाद में जहाज़ों से उतारा गया या नहीं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ये मालूमात सेटेलाइट तस्वीर और दीगर खुफिया ज़राए के जरिए हासिल की। अमरीकी हमलों से ईरान का एटमी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। अमरीकी दिफाई इदारे पेंटागन के मुताबिक अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तंसीबात तबाह हुई और हमलों के बाद होने वाले नुकसान से ईरान का एटमी प्रोग्राम 1 से 2 साल पीछे चला गया है। यूनान में गर्मियों का मौसम आते ही जगह जगह आग लग गई। यूनान के सबसे मशहूर सयाहती मकाम एरिटेरियम में आग काबू से बाहर। यूनान में सख्त गर्मी और तेज समुद्री हवाओं की वजह से आग बुझाने में दुश्वारी। यूनान में 6 से ज़ायद मकाम पर बैक वक्त आतिशज़दगी के वाक़यात। सयाहों की रिहाइशगाह को बड़े पैमाने पर खाली करवा लिया गया। यूनान समेत यूरोप भर में शदीद गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूनानी महकमा मौसमियात की जानिब से नई वार्निंग जारी कर दी गई। आइंदा हफ्ते दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। यूनानी हुकूमत ने म्यूनसिपलिटी हॉल्स को ठंडी पनाहगाहों के तौर पर खोल दिया है। हीट स्ट्रोक और शदीद गर्मी में बेहोशी के खदशात के पेश नज़र एम्बुलेंस सर्विस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। और पंजाब भर में 5 से 10 जुलाई के दौरान मानसून बारिशों का इम्कान। PTMA के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलिया, चकवाल, झेलम और गुजरावाला में बारिशों का इम्कान। लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल और फैसलाबाद में बारिश का इम्कान।